نشین پر تشریف فرما بزرگ قائد الحاج سید طاہر صاحب، طاہر اقبالی صاحب، مجاہد صدیقی صاحب، شان بھائی صاحب، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، فتح پردہ سننے والی عزت ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ انتخابات کا دورہ ہے، آپ کے درمیان میں مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے آتے ہیں اور نت نئے سرسبز باغ بتلاتے ہیں، اور جب منتخب ہو جاتے ہیں تو راہ فرار اختیار کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہاں سے منتخب ہونے والے امیدوار کا بھی یہی حال رہا۔ اگر ہم یہ کہتے تو لوگ کہتے کہ مخالفت میں کہہ رہے ہیں، لیکن آج عوام کے گھروں سے دلوں کی آواز نکل رہی ہے کہ یہ 5 سال میں ایک مرتبہ چہرہ ضرور بتاتے ہیں۔ تو ایک صحافی نے بھی اپنا اداریے میں اپنے سروے میں لکھا کہ ان کی ایک عادت بڑی اچھی ہے، 5 سال میں ایک مرتبہ ضرور آتے ہیں۔ تو میں بتلاتا چلو بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یہاں کے جو منتخب ہونے والے امیدوار تھے جو 20 سال سے آپ کے درمیان میں رہے، ان کی ماضی کی زندگی کیسی گزری، کیا گزری، بزرگان ملت جانتے ہیں۔ لیکن مجھے تحقیقکار نے ایک بات یہ بھی بتلائی، سن 1978 کے بعد میں مری چنا ریڈی آندھرا پردیش کا سی ایم بنا، کانگریس کا چیف منسٹر بنا، تو اس نے سیٹلمنٹ قائم کی۔ جب اس نے سیٹلمنٹ قائم کی تو کچھ غریب لوگوں کو سیٹلمنٹ بچے دیا اور کچھ غریب لوگوں کے لیے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ لگا، مختلف کارنامے انجام دیا اس نے۔ تو اس نے ایک کارنامہ یہ بھی انجام دیا تھا، چھوٹی چھوٹی بسیں بنایا، سیٹلمنٹ کے نام سے ایک ڈرائیور اور ایک کنڈکٹر کو وہ منسوخ کر دیا۔ اس کی کچھ مدت ہوا کرتی تھی، اس مدت تک وہ روزانہ پیمنٹ کر دینا، اس کے بعد اس کو بدذاتی ہو جاتی تھی مسلمانوں۔ تو اس میں لینے والی شخصیت کا نام آپ کے اپنے ہر دن آندھرا اس صدی کے مایا ناز MLA صاحب بھی وہ سیٹلمنٹ کی بچ لیے تھے۔ اس سیٹلمنٹ کی بچ کے ذریعے سے آج ہزاروں کروڑ کی آسانی کیسے بن گئے پوچھو۔ اس لیے کہ جتنے پرانے شہر ان کے حلقے کے اسکول تھے سب نیست و نابود ہو گئے، پورے نیست و نابود ہو گئے۔ اب ان کے ہماری بولتے بھائی نہیں کرے، بھائی کہاں کرے، تو بھائی لوٹائے کہ کو نہیں، ہمارے پاس اقتدار نہیں تھا نہ ہے، باوجود اس کے یہ بریملواڑی میں ایک اسکول کو خالی کرانا چاہ رہے تھے تو ہم نے آ کر دھرنا دیا جس میں مجید اللہ خان فرق پیش رہے۔ جاؤ بریملواڑی کے لوگوں سے پوچھو کس نے آ کر احتجاج کیا، پھر آپ نہیں کرے مگر بکا کیسے؟ دریچے ماتا اسکول، مفید اللہ نام اسکول کہا گیا، سٹی گنگا اسکول کوٹلے لجا کا گیا، مادن ابیت میں مرحوم غازی ملت نے گورنمنٹ کی لینڈ ایکوائر کرائی تھی کہا گئی، مجید اللہ خان فرق نے مادن پیٹ پولیس اسٹیشن پر 500 لوگوں کے ساتھ احتجاجی دھرنا دیا۔ پھر مانڈولی ہو گئی، رشوت کا دور ہے، پولیس والوں کو مینج کرتے، الیکشن میں پبلک کو مینج کرتے، ووٹ دو نوٹ دو، ووٹ لو کا درس ان کا ہے، ہمارا درس یہ نہیں ہے۔ ہم کو ضرورت پڑے گی تو آپ سے ہی پیسہ لے کے ہم انتخابات لڑیں گے، اب جب منتخب ہو جائیں گے تو خدا کی قسم اگر یہ مجید اللہ خان فرق زیادہ نہیں 6 مہینے کی مہلت دیجیے گا، 6 مہینے میں یہ اپنا نتیجہ بتائے گا۔ اگر یہ آپ کے درمیان میں نہیں رہے گا تو ہم زبان اس کو استعفا میں لے لیں گے، آپ جس کو چاہے الیکشن لڑا لیں گے۔ یہ ہمارا عزم ہے، یہ ثانیہ غازی ملت بنے گا۔ ایک بار یہ منتخب ہو جائے گا تو یہ میرا دعویٰ ہے کہ اس کی زندگی بھر اس کو کوئی یہاں سے جانے نہیں دے گا اور یہاں کے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ کوئی پہلی بار ہی ایسی جرأت کیجیے، اتنے ووٹ ڈالنا، اتنے ووٹ ڈالنا، یہاں بیٹھنے والوں کی ضمانت ضبط ہو جانا، پھر ان کے مقابلے میں کوئی مقابلہ کرنے کی جرأت نہ کرنا۔ ایک مرتبہ یہ اقدام کر کے دیکھیے، آپ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے نا بھائی۔ قوم کی جماعت نمک کا کنکر اب گار کا پہاڑ ہو گیا، ان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب مسائل لے کے ان کے پاس جاتے ہیں تو آپ سے کس قسم کی تبلیغ کرتے ہیں، آپ کو کس قسم کی گفتگو سے نوازتے ہیں۔ مسلمانوں
अगर ये आम आवाम को कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ती तो इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन गुजरने के बाद जाकर दारुस्सलाम में खामोशी से मुशाहिदा कीजिए, एक महीना जाइए और देख लीजिएगा, उसके बाद आप खुद पहल की हाथ में लेंगे इनके ताल्लुक से जब बात होगी तो। मुसलमानों, इस तरह कौम का वतीरा किया गया। अब रहा सवाल अवर वर्क इज अवर आइडेंटिटी, यानी बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए शहर के अंदर, नए शहर में भी लगा दिए, अवर वर्क इज अवर आइडेंटिटी, यानी हमारा काम ही हमारी पहचान है। हाँ मुसलमानों, इनका काम आपको बतलाता चलूं। सबसे पहले सन 1980 के बाद हैदराबाद के अंदर भी खुसूस पुराने शहर में कच्चे फसादात होते रहे और उस जमाने में एक सत्तरिया नामी एसीपी था जो कट्टर फिरका पर जहन का हामिल था। उसने मुसलमानों पर लाल दरवाजे में गोलियों की बूछार कर रहा था तो उसकी जमीयत के साथ एक अब्दुल खदीर नामी जवान था जिसने देखा ये कौम के बच्चों पे फायरिंग कर रहा है, छोटी सी खता की थी मगर कितनी बड़ी सजा पाया। उसने रैगा दबा दिया और एसीपी का ढक्कन खोल दिया, स्पॉट पे लेट गया। उसके बाद बड़ी चिंगा रेड्डी क्या कहने लगा कि वो हालत नींद में था, ट्रैगर दब गया, लेकिन फिरका पर जहन काम किया, उसको सजा दिलवा दी गई, 14 साल की सजा हुई। उसके बाद आज 21 साल हो गए, अब्दुल खदीर का पैर भी काट दिया गया, शुगर के मरीज है, आज तक बाहर नहीं आए। और ये साहब माई वर्क की माई आइडेंटिटी आपकी क्यादत क्या करना अंजाम है। न फिर कभी किसी की किरदार कशी की जाती थी, लेकिन आज तो ऐसे ऐसे वाकयात आपके सामने बयान कर रहे हैं और उलमाए मिल्लत इस्लामिया की मौजूदगी में कर रहे हैं। रोज़े महशर इनको भी हिसाब देना है। मुसलमानों, क्या बयान किया, क्या उनके उस बयान से आप लोग मुस्तफे का मुसलमाना बोलो। मक्का मस्जिद के अंदर आपकी तकरीर और किससे हालत बशरियत में हम कलाम होने का जिक्र किया। हालत खामोश से तो चल जाता था, आप हालत बशरियत में तारुफ भी लिए। आप बोले तो बोले मैं तुम्हारा पैगंबर हूं और अब्बास को लेके जाके पूरे वलियों के पैरों में डाल दिए। फिर बाद में बोले आप लोगों की दुआ में जाकर तुम्हारा दूल्हे बचा लिया। जब जिसके लिए कायनात को अल्लाह बनाया वो लोग कह दिए थे बेटा तुमसे कुछ नहीं होता, तो फिर तुम्हारा जिनके पैरों में कह तू गिरे बेटा। ये कौम को लुभाने की साजिश रचाई जाती है। मुसलमानों, सिर्फ और सिर्फ कौम के जज्बात से खिलवाड़ किया जाता है, मिल्लत इस्लामिया का सौदा होता है और हमसे ये कहा जा रहा है कि तुम बीजेपी के एजेंट, यहाँ पर 90,000 वोटर है, इन्हों बीजेपी के एजेंट है। आपके सदर मोहतरम हमारे ताल्लुक से शुक्रिया बजा रहे छावनी में, हमारी मुखालिफ जमात भी, हमारी नजरिया के इख्तिलाफ वाले भी हमारे मुकाबले में कैंडिडेट नहीं खड़ा करे। हम बहुत बड़ा सलाम करते हैं वजह सदर और आप हमको बीजेपी का एजेंट बोल रहे। खुदा की कसम हमारा नजरिया ये था कि यहाँ पर मजलिस और बीजेपी की फाइट हो रही है, हम इसमें रकमंदाजी नहीं करेंगे मलकपेट से और कारवान से, इसीलिए नहीं वहां पर राष्ट्र मुकाबला है, इसलिए हमने उम्मीदवार को नहीं खड़ा किया। अगर हम उम्मीदवार को खड़ा करते तो टाटा बिरला हो जाते। बाबा ये चैलेंज आज झूठे तकरीरा कौम के सामने नहीं करना। हम मिल्लत के लिए जिंदा है और मिल्लत के लिए मरने का हमारे साथ है। हम किसी भक्तियों से डरने वाले नहीं। 21 साल में मुख्तलिफ गालियों से हमको भी धमकियां दिए गए, कभी पैसे की बात की गई, कभी मुंडी की, कभी तन मंदिर की। मुसलमान जब पैदा होता है तो साथ में वो मौत का ऐलान दिलाता है। पैदा होना ही मौत का ऐलान है, वरना पैदा ही नहीं होता इंसान। पैदा होना ही मौत का ऐलान है। हम मौत से डरने वाले नहीं। हम ऐसे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी ऐसे चिंदी चोरों के हम डरने वाले नहीं है। ऐसे कई आए कई चले गए। 313 का लश्कर जवान हमारे पेशे में रहता है। जब कभी मुसलमानों पर किसी मसाइल का पहाड़ टूटेगा तो खुदा की कसम हम निकल जाएंगे और फतेहयाब हो जाएंगे। ये हमारा ईमान है और ये हमारी ईमानी हरारत है और हमारी कैफियत है। तुम मरूम हो जाओ। हैदराबाद में 45% मुसलमान है। तुमने नागेंद्र से मांगा नहीं की, कांग्रेस से मांगा नहीं की, फिर को टिकट
सिग्नेचर तो हैदराबाद से खड़ा करते हैं। हैदराबाद से तुमने कैंडिडेट नहीं खड़ा करा, सिकंदराबाद के अंदर अच्छी खासी आबादी मुसलमानों की है, तुमने क्रिश्चियन को दिए, बिरादरी में चले गए, क्रिश्चियन को एमपी का टिकट दिए और हमको बोल रहे बीजेपी के एजेंट। अरे हम नहीं, हमारे कायद से काट के भाग गया नरेंद्र, परसों बन गया बेचारा, हैदराबाद छोड़ के भाग गया तो फिर मेरठ में जाके बसा। ये क्यादत होनी चाहिए। तुम क्या मुसलमानों की क्यादत करोगे? तुम्हारे कुछ शरान पर छोटे मार के लुटाए तो असेंबली में पीड़ बताए ये मुसलमानों का खाए, ये मुसलमानों की तौहीन करने वाला असेंबली में पीड़ बताता है और कहता है कि मुझसे पुलिस वालों ने मुझ पर जुल्म किया। जो शख्स अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता तो वो कौम का क्या तहफ़्फ़ुज़ करेगा? मुसलमानों, गाज़ी मिल्लत जब हुआ करते हैं, किसी भी नौजवान पर जुल्म होता तो गाज़ी मिल्लत पुलिस स्टेशन जाते, अगर सरकारी इंस्पेक्टर रहा, संतरी बोलता खान साहब आ गए, पैसा में छूट जाता, 2-2 घंटे तक नहीं निकलता। मेरे भाई, ये दबदबा मुसलमानों की क्यादत का था। ऐवानों में स्पीकर को माइक तोड़ के मारा जाता जब हमारे बताने बात को नहीं सुना जाता। जब कभी मुसलमानों पर जुल्म होता तो वक्त के कमिश्नर को भरी रोड के गिरबान पकड़ कर खींच लिया जाता। इसे मुसलमानों की क्यादत कहते हैं। मुसलमानों ऐसे ना करो और न हिंदार क्यादत मुसलमानों को नहीं चाहिए। अगर कौम को सच्ची क्यादत चाहिए तो मजीदुल्लाह खान की शक्ल में मिलेगा। यही बड़ा बाजार का चौराहा था, साजिशें रचाई जा रही थी, हम सबोताज करेंगे, हाजियों के जत्थे को तोड़ फोड़ करेंगे की प्लानिंग चल रही थी। लेकिन ये नौजवान ने जैसे ही ऐलान हुआ तो रात की अखबार की परवाह नहीं किया, यही बड़े बाजार से 2 बजे जुलूस निकाला और हाजियों की मस्जिद की तरफ कूच करने लगा। गुलजार हाउस पर इसको रोक लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। उसके फौरी बाद में उनके जत्थे को मुलतवी कर दिया गया। लिहाजा ये कहते हैं मुसलमानों, देखो और तमाशा देख, इंतजार करो, तमाशा करो कि हमारे पास पॉलिसी नहीं है। जब का जब फैसला, जब का जब तस्लिया, हर पर की इस बात कर लेना बाबा, ये कहानियां किससे कौम के सामने नहीं सुनाना झूठे और हमको बोल रहे बीजेपी से मिले हुए। यहाँ जिंदगी भर एरिया वाली तो बीजेपी नहीं आती। ये मुसलमानों का किला है। आपके अब्बा हुजूर बोलते थे ये हमारा दिल है, याकूतपुरा मेरा दिल है। दिल फेफड़े दूसरे सब निकाल के फिर के गली गली कौम का वतीरा कर दिए। मैं मजीदुल्लाह खान पर पूरी तस्वीर आपको लगाएंगे, यहाँ से वहां तक चले जाइए, भुगत नगर से पूरा तालाब कट्टा अंदर चलेंगे। कितनी गंदगी की जिंदगी मुसलमान गुजार रहे हैं, इनका कोई पुछाने हाल नहीं। आज ये मिल्लत ने, जैसे कि मेरे फैसले मुकर्रर सर ने कहा कि आज ये मिल्लत ने किला बनाया, किला जिसकी बदौलत, जिसकी जिद्दोजहद, जिसकी काविशें और कोशिशों की वजह से उन मुसलमानों को ऐसे दलदल के अंदर आबादियां कर दी जहां पर बूढ़ी जानवर फिरा करते थे, जहां पर कभी कभार घंटे की आवाज आ जाती थी, अज़ान की आवाज नहीं आती थी। तो आज ये मिल्लत ने दिन में 5 मरतबा हैया खला और हैया फलक की सदाएं दिला दी। ऐसे दलदल को गुलिस्तान बना दिया, मुसलमानों के किले बना दिया, तब जाकर आप पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। और आज किरदार कशी उस शख्स की करते हैं जिसने अपनी 22 साल जिंदगी में हम और मिल्लत के खिदमत के सिवा और कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ बाबा मिल्लत की खिदमत की। और ऐसी खिदमत की वक्त के कलेक्टर को पानी में, गंदे पानी में घसीट दिया। मेरी कौम डूब रही है, तू पैसे चला रहा है। तस्वीरें मौजूद है, शराब कट्टा के बुजुर्ग की गवाही देंगे। आज यहाँ पर कोई भी 25 साल का नौजवान बैठा है तो गाज़ी मिल्लत के कारनामों से वो वाकिफ नहीं है। हमको उनके कारनामों को बतलाना इसलिए मकसूद है कि फिर मिलना कोई ऐसा गाज़ी मिल्लत पैदा हो जाएगा तो वो अमानुल्लाह खान का लफ्ज़ से जिगर होगा, जिसका नाम मजीदुल्लाह खान फर्क है, वो सानिया गाज़ी मिल्लत बराबर बनेगा।